Apex News, India, Northeast. नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडा। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। मेघालय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रस्तुन तिनसोंग, जो होम डिपार्टमेंट संभालते हैं, उन्होंने राज्य में इलीगल कोल माइनिंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। तिनसोंग ने कहा कि गैर कानूनी माइनिंग ऑपरेशंस दूर दराज और पहुंच से बाहर इलाकों में चल रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने पुलिस कर्मियों की कमी का जिक्र किया। साफ रहा कि राज्य सरकार रैट होल माइनिंग पर प्रतिबंध करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस की मदद लेना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त निर्देश दिए गए हैं, सभी इलीगल कोल माइनिंग ऑपरेशंस को बिना देरी बंद कराया जाए। And once the chairman is appointed, I'm very sure they will carry out investigation or whatever accordingly. Sir, High Court is today. In fact, High Court has taken up suo motu case against the illegal mining activities in East Jayanta Hills, particularly this dynamite blast issue. So, what government is doing to control the illegal mining activities in East Jayanta Hills? See, right now we have already gone all out to make sure that those illegal mining activities that what has happened or which is happening till today, we have spent all out of our time to close it down all. We have already directed the district administration to go all out and make sure that all those illegal activities be immediately stopped. That is number one. Then number two, again, yes, today, within 10 days time, again, we will file our affidavit to the Honorable High Court. And I think right now I will not tell you much because this issue is also lying with the Honorable High Court. So let the Honorable High Court also take whatever necessary steps from their side. There's been a lot of political criticism towards the government, stating that the government is very much well aware of these illegal activities. So how can it be possible that government is not aware? And despite many incidents have happened in the past also. See, whatever incidents happen, action is taken. I think you must have seen it, the report. We have tried our best. But now, again, this incident that has just happened recently, you knew it well. The interior places. I think from the main road, it takes you, even by 4 wheels, it takes you 3.5 to 4 hours. So you know the topography, the challenges that even the police personnel faced. So therefore, as I said to you, right now, and especially during the winter season, we are going aggressively after the incident happened. And let me tell you one thing, we will continue to do that, especially during this dry season, to make sure that the illegal activities stop. मेघालय के इतिहास की सबसे बड़ी माइनिंग ट्रेजेडी के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विरोध पक्ष ने ईस्ट जायंता हिल्स में इलीगल कोल माइनिंग से जुड़े डायनामाइट ब्लास्ट के बाद चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा की इस्तीफे की मांग की है। हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रस्तुन तिनसोंग ने इस मांग को राजनीतिक प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी जिम्मेदारी लेगी और भविष्य में ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। I think you can demand. Sometimes you can demand that Prastun also should resign. So that is there. But let me tell you one thing. We take the whole responsibility to make sure that these illegalities stop immediately. So is there any update from the ground? Is the search rescue operation still going on? Well, yes, the operation is still on, and right now no recovery of death or something. But still, of course, we have asked the concerned personnel to still see if there is any more
trap or any more dead bodies, so that they are on the ground. राष्ट्रीय खबर में 11 बीजेपी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर उनके नेतृत्व पर पूरा विश्वास जताया है। ये पत्र संभावित नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच आया है, जबकि कांग्रेस एमपीज ने स्पीकर के व्यवहार पर आपत्ति जताई है। बजट सेशन लगातार दूसरे हफ्ते भी विपक्ष के आरोपों के चलते प्रभावित रहा, जहां स्पीकर पर ट्रेजरी बेंचेस को तरजीह देने का आरोप लगा। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट के लितंग और मंगकोट गांव में हिंसा भड़क उठी, जिससे लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। तंगखुल नागा और कुकी समुदाय के बीच टकराव की खबरें हैं। पुलिस ने पुष्टि की है कि 25 घर और 4 सरकारी क्वार्टर्स जला दिए गए। गोली चलने की आवाज भी सुनी गई, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स और अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लितन गांव में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। Why they should be set back? When government is formed, there is no setback. We are progressing. We are going forward to bring peace and development, and that's why we are reaching to people to bring forward our vision and commitment. So, when we start working with people, addressing the need of the people, then only things can start. We have just 3-4 days we start. We have not even formed the full cabinet, full government also. So, but we cannot rest. So, we are coming out to work with the people, understanding the feeling of the people. Sir, what is the overall assessment of the situation? You had detailed discussion also. Yeah. It will improve. It will surely improve because the people also want to have peace. It was started, as I said just now, it was started because of few people, because of some, we can say they are rascal. So it was misunderstood. It was being communalized. It is very unfortunate. So now we came to understand. So slowly the people understand. So it'll. Any message for the people of Manipur? That's why I've just said we need peace. Peace is the only way for us, Manipur. As you said, because of this, Honorable Prime Minister, with his blessing, Home Minister, with his blessing, we want peace in Manipur. So a new popular government has been installed in Manipur to bring peace in the state. That is our objective, priority. Thank you, sir. All the best. 오, 시바이 나 너우 심지고 해. 해. 너우 심지네 해. 지 통행실로 곱다이를 제. 그러면시울라, 유시울라, 프로키울라. 아로 너우 가리 상태니나. 이렇게 제가 영로지 안 디슬리 나올 컵다이를 좀 돼. 예. 그게 왜라? 예. 오, 예. 제 바이 노 가리지네 해. 제. 거다를 꽤 토타미가 있네. 지금 란시오지로 토타이래. 너가 신나 소위 집시지. जयंतिया नेशनल काउंसिल ने 5 फरवरी को ईस्ट जयंतिया हिल्स में हुए कोल माइन ब्लास्ट पर सवाल उठाए हैं, जिसमें 28 लोगों की जान गई थी। काउंसिल ने बयान में कहा कि ब्लास्ट की तीव्रता देखते हुए ये सिर्फ दुर्घटना नहीं लगती, बल्कि सबटाज की संभावना हो सकती है। इसने इलीगल क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की भी जांच की मांग की है।
संगठन ने इलीगल ट्रैफिकिंग में शामिल लोगों की गिरफ्तारी और साइंटिफिक माइनिंग पॉलिसी में सुधार की मांग की है। प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। In an unfortunate incident, we lost both our local resident and our district as well as a non-tribal from the state, or we can say from outside the country. But we from the JNC, we would like to send our deepest condolences to the families of the deceased. As an organization, we would like to state that the incident in Mansingat Hansco has shocked society deeply. We cannot accept this tragedy as a simple accident. There is a strong suspicion that this is an attack on our communities which cannot be known and beyond our imagination. There is one statement from one of the laborers who worked there in Hansco. He came to know from his statement that there are five areas which there is of the illegal mining up there. But on the day of the blast, two of the mining are not working. So if the two will be work, the debt will be increased, so we from the JNC, we feel like this is not just an accident. So we feel, because we came to know also from the public of East Jantia that most of the laborer in Hansco is an outsider, it's not just from outside the state. But we came to know that a lot of the laborer are from this our neighborhood country, Bangladeshi. Most of them are Muslim. So we have the government has provided scientific mining. But to apply that scientific mining, we need an area of a very big land, like 100 acre plus, to get a prospecting license. So it is very difficult for the public to apply in general, to apply this kind of scientific mining, because 80% of our residents, especially in East Jantia Hills, most of them, they have a small scale mining. So if there is a small scale scientific mining, then it will be it will provide a benefit for the public as a whole. And we have seen this incident, what is happening in Hansco, just not shock our state, but it's also shock as a country as a whole. We have seen our Prime Minister Narendra Modi has released a compensation to those who deceased in this case. So, and some of the union ministers also have provided a press release on this matter. But we from the JNC, through the media house, we want to send a clear message to our Prime Minister and to our Union Minister of the Government of India that they should not only it should not only just a compensation or just a press statement. We want them to give us a solution so that this kind of thing won't happen in future. So we want the Government of India to provide our state Meghalaya small scale scientific mining, so that it will be a profit for both for the public as a general, to all the public, not to some. So because if this illegal mining continue to happening, there will be a great loss for the state, the central and the autonomous district council. We have seen in our Jantia Hills Autonomous District Council, like the council cannot provide a salary for their worker. Maybe this is due to the leakage of the revenue of the government. So if they can provide us the small scale scientific mining, I think this incident or this kind, the leakage of the revenue can be controlled. So we from the JSC, we want the government to go deep or to consider our demand to provide us the small scale mining. मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में ईस्टर्न कमांड इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2026 का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान 37 गैलेंट्री और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स प्रदान किए गए। इसके अलावा 49 यूनिट्स और एक आर्मी पब्लिक स्कूल को यूनिट्स अप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया। सीनियर अधिकारी और पुरस्कृत सैनिकों के परिवार समारोह में मौजूद रहे। मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत, 3 कोर इंटेलिजेंस बटालियन। 21 मई 2024 को मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत देश के पूर्वोत्तर में एक इंटेलिजेंस डिटैचमेंट कमांडर के रूप में तैनात थे। इस दौरान मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत ने गुप्त निगरानी के माध्यम से
3 विद्रोहियों को पकड़ा। जून 2024 को उन्होंने 3 और ऑपरेशन किए, जिससे 6 विद्रोही पकड़े गए और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत ने 5 अन्य ऑपरेशनों में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर विद्रोहियों के ठिकानों को नष्ट किया और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। ऐसे वीर प्रयासों और सैन्य प्रदर्शन के लिए मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय में AIU ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल टूर्नामेंट 2025-26 का शुभारंभ हुआ। लगभग 50 विश्वविद्यालय और 75 टीम्स इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन मेघालय के मंत्री वाइलाट मिकी शिल्ला ने किया। That was a beautiful performance by the University of Science and Technology. गुप्त सूचना के आधार पर बारडोवाल ब्रिज के पास की गई छापेमारी में 96 किलो सूखा गांजा बरामद किया गया। इसकी अनुमति कीमत लगभग 19,20,000 रुपए बताई जा रही है। माल वहां बिना दावा किए मिला। सोनामुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। ड्राई गांजा का ड्राम है वो मतलब रखा हुआ है सीक्रेटली, तो हम लोगों ने रात में रेड किया है। ये बोरदवाल में पड़ता है, ये अबेंडन प्लेस है, तो यहाँ पर रेड करके हम लोगों ने 4 ड्राम बरामद किया है जो फुल ऑफ ड्राई गांजा। तो ये वेट करके देखा गया कि उसका जो है 96 की जो ड्राई गांजा, तो हम लोगों ने ये आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज हम लोगों ने ये सीज किया है एज ऑन क्लेम। और हम लोग एक सोनामुरा थाने में एक इंक्वायरी स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने कि उसका जो एक्चुअल ओनर है ये कौन इसके साथ जुड़ा हुआ है। और हम लोग एक देख रहे हैं जो भी इसका कोई मतलब एविडेंस मिलता है कोई ओनर का, तो हम लोग जरूर उन लोगों के खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। और उसका जो मार्केट वैल्यू मतलब जो ब्लैक मार्केट वैल्यू ये तकरीबन 1,92,000 के आसपास होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं जो भी मतलब उसका कोई मतलब अगेंस्ट में कुछ एविडेंस मिलता है तो हम लोग जरूर उन लोगों के खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। थैंक यू। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने राज्यों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि SIR प्रोसेस में कोई बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के एक सीनियर पुलिस अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया है और फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशन की अवधि 7 दिन बढ़ा दी है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार बंगाल में SIR प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का सहयोग न मिले तो प्रक्रिया पूरी करना मुश्किल होगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी राजनीतिक कारणों से कोर्ट का सहारा ले रही है।
देखिए, बंगाल में एसआईआर को रोकने के लिए टीएमसी सरकार और पार्टी भरपूर प्रयास कर रही है। यहाँ के जो भी एसआईआर को आगे ले जा रहे हैं कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी, सारे अगर नॉन कोऑपरेट करेंगे तो कैसे पूरा होगा। और इधर ममता बनर्जी कोर्ट में जाके दाखिला दे के बचने की प्रयास कर रही है। इसलिए अभी 8 से ज़्यादा जो नए कर्मचारी ऑफिसर को दिया गया, वो कौन है, कहाँ है, उसका कोई अता पता नहीं है। तो 1,38,00,000 लोगों को नोटिस भेजा गया, उसका सुनवाई होनी चाहिए, उसके लिए मैन पावर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और जब तक ये सरकार कोऑपरेट नहीं करेगी, मैन पावर नहीं देगी, तो कैसे पूरा होगा। तो ये डामाडोल केवल बंगाल में हो रहा है, बाकी कहीं नहीं है। लेकिन कुछ भी करें, टीएमसी सरकार बच नहीं पाएगी। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन 19 से 22 मार्च तक यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में होगा। इस समिट में पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और एक्सपर्ट्स भविष्य की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम्स पर चर्चा करेंगे। 50 से अधिक सेशन, 300 स्पीकर्स और 25,000 से ज्यादा विजिटर्स की संभावना है। हम शोकेस करेंगे जितने भी पावर सेक्टर्स के रिलेटेड एरियाज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड जनरेशन, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ रिस्पांस फ्रॉम ग्लोबल कंपनीज, एंड इसमें सभी न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू इनोवेशंस जो हैं शोकेस करेंगे। और हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी हम काफ़ी प्रॉमिनेंस दे रहे हैं हम लोग। वी आर इन्वाइटिंग ऑल द मिनिस्टर्स एंड ऑल कंपनीज टू पार्टिसिपेट एंड टू हैव एक्सपोजर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, व्हाट आर द new technologies which are coming, what are new innovations in the sector, and we are also encouraging the investment to come, so that with the investment we can have new projects and we can have more growth. India is progressing towards Viksit Bharat, as the government of India is now the theme of Viksit Bharat. तो Viksit Bharat के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा प्राइम मूवर है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना है। तो गाँव-गाँव में, देश में सब जगह में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना है, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो ग्रोथ होगी, पावर होगी तो सभी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, सब चीज़ ग्रो करेंगी और हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके अंदर हम लोग एग्जीबिशन भी रहेगी। हम बहुत सारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और नई कंपनीज और नए प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हम लोग फैमिली कॉन्फ्रेंसेस भी चलेंगी, जिसमें लोग डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक्सपर्ट्स फ्रॉम सेक्टर आएंगे जो अपनी नॉलेज शेयर करेंगे लोगों के साथ। वायर सेलर्स मीट भी होगी और हम लोग स्टार्टअप्स को भी इंकरेज कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं वो लोग अपनी डेवलप करेंगे। उसके अलावा हमने वुमेन इन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक अलग सेक्टर रखा है, क्योंकि आजकल वुमेन भी आगे आ रही हैं। तो वुमेन को इंकरेज करने के लिए हम लोगों ने वुमेन इलेक्ट्रिसिटी अलग से एक हमने थीम रखा है, वो भी रहेगा वहाँ पे। उसके अलावा हम स्टूडेंट्स को भी इंकरेज कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स आएँ और दे हैव ऑल्सो ए लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर देम, एंड ऑल द स्टेट्स वी आर इंकरेजिंग टू कम एंड पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन। थैंक यू। Actually, this program Bharat Electric Summit 2026 is a Government of India initiative under the Ministry of Power, and this is a unique show of its kind, first time, पहली बार ऐसा हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पे हम कंप्लीट शो ही कर रहे हैं, जिसमें सारी डायमेंशन जैसे जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसमें मेन इम्पॉर्टेंस जो है स्टेट्स को दे रहे हैं, बिकॉज स्टेट्स के अपने जो इश्यूज़ हैं वो भी एड्रेस होंगे सारे। और जितनी एसोसिएटेड एजेंसीज़ हैं इसमें ये ग्लोबल शो है, नॉट ओनली दी, हालांकि इंडिया ने जो अभी तक अचीव किया है, हम रिन्यूएबल्स में पावर में ट्रांजिशन में ज़्यादा हमारी जैसे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जैसे हमारा विज़न था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कि 500 गीगावाट एडिशन कर लेंगे बाई 2030, तो अभी तक उसका 50% ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं रिन्यूएबल्स में, जो बेसिकली नेट जीरो टारगेट है हमारा। तो इसमें पर्टिकुलरली आज हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट में हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारा नेट जीरो अचीव करने के लिए जो है उसको मेजर फोकस इसलिए है बिकॉज ये हाइड्रो का बहुत पोटेंशियल है, पर्टिकुलरली स्टेट ऑफ अरुणाचल में 50% है। तो 12 गीगावाट के ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU कर लिए। सरकार ने घोषणा की है कि अप्रैल 2027 से M1 और M2 कैटेगरी की गाड़ियों के लिए WLTP सिस्टम के तहत एमिशन टेस्टिंग होगी। नए नियम रियल वर्ल्ड एमिशंस को अधिक सही तरीके से नापने के लिए लागू किए जा रहे हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले का विशाल प्रचार करने का निर्देश दिया है, जिसमें अविवाहित महिलाओं को 20 से 24 हफ्ते तक की गर्भावस्था में कुछ शर्तों के साथ गर्भपात की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने जोर दिया कि जानकारी की कमी के कारण किसी महिला को अनचाही प्रेगनेंसी जारी रखने के लिए मजबूर न किया जाए। Supreme Court judgment, the court held that Rule 3B must be interpreted purposively to include unmarried women whose pregnancies arise from consensual relationships. The bench emphasized that reproductive autonomy, dignity and privacy under Article 21 apply equally to all women, regardless of marital status. It directed Maharashtra's Public Health Department to circulate the Supreme Court ruling widely to prevent repeated denial of abortion rights. The case arose from a 26-year-old woman's plea seeking termination of a 22-week unwanted pregnancy following contraceptive failure, citing social stigma and mental trauma if forced to continue. Tune in for crisp shots on lengthy judgments only on lawbeat.in. बांग्लादेश की मायमनसिंह में 62 वर्षीय हिंदू चावल व्यापारी सुसैन चंद्र सरकार की हत्या की खबर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के पटना के कदम कुआन क्षेत्र में 65 वर्षीय वकील डॉक्टर इंद्र लक्ष्मी का आंशिक रूप से जला हुआ शव मिला। पुलिस ने स्थल को घेरकर फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है। महिला जो अपने बरामदे में जली हुई पाई गई हैं, सत्यापन में पुलिस जब वहां पहुंची तो पाया गया कि निचले तल पे एक महिला बाहर बरामदे में ग्रिल के पास जली हुई हालत में थी। उनके परिजनों से संपर्क किया गया तो पता चला कि इनके पति रांची में रहते हैं और एक पुत्री है जो कहीं बाहर दिल्ली में रहती हैं, और ऊपर में इनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं और पीछे इनकी एक केयर टेकर महिला रहती है। उन लोगों ने सुबह में इसको लगभग 7:30 बजे के आसपास देखा और पुलिस को सूचना दी थी। तत्काल प्रथम दृष्टया इनके पति ने भी कोई आरोप नहीं लगाया गया है। सबको जांच के लिए और पूरे घर में जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया था, जिनके द्वारा जो है प्रदर्श कलेक्ट किया गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। इस संबंध में उनके परिजनों का बयान आने के बाद और या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या तथ्य आते हैं उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की। एफएसएल तो अभी प्रदर्श को कलेक्ट करके गया है, लेकिन तात्कालिक वहाँ पर एक केरोसिन ऑयल का जो है मग में कुछ अंश पाया गया है और इससे संदेह लगता है कि शायद केरोसिन उनके बॉडी पर डाला गया या उन्होंने डाल के आत्महत्या की है। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.